Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord everyone. Such a joy once again. बहुत ही आनंद की बात है एक Happy बार Father's फिर से. Day. Happy Father's Day. Amen. Amen. And we just want to thank God. He's a good Father. और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो एक भला पिता है. Today we have not gathered here to talk about ourselves. आज जब हम इकट्ठा हुए हम अपने बारे में बात करने को नहीं, We are going to talk about our Heavenly Father. लेकिन आज हम अपने स्वर्गीय पिता के बारे में बात करेंगे. And we are going to thank Him for being such a good Father. और हम उसका शुक्रिया करेंगे एक भला पिता होने के लिए. Amen. आमीन. Today I have a lot of things and I pray that Lord will reveal His heart unto you. आज मेरे पास बहुत सारी बातें हैं और मेरी प्रार्थना है प्रभु अपने हृदय को आपके ऊपर जाहिर करेंगे. It's so important to understand the Father heart of God. ये बहुत जरूरी है परमेश्वर के दिल को समझना. Many people carry a wrong image about their Heavenly Father. बहुत सारे लोगों मन में एक अलग छवि बनाई हुई है स्वर्गीय पिता की. They think that He is very dominating. उनको लगता है कि वो बहुत डोमिनेट He करते is हैं, very aggressive God. कि वो बहुत ही गुस्से वाले अग्रेसिव गॉड हैं. But when you look at Jesus Christ, पर लेकिन जब हम यीशु मसीह को देखते हैं who is the exact image of God, जो बिल्कुल परमेश्वर का स्वरूप है exact representation of God, और बिल्कुल दर्शाते हैं पिता को, you will see a different image. तो आप एक अलग छवि देखेंगे परमेश्वर की. Amen. आमीन. I want to read from, I want to focus on Luke chapter 15 today. आज हम अपना सारा पढ़ेंगे लूक में से, उसके ऊपर केंद्रित होगा हमारा. And we will read from verse 1 onwards. हम पहली आयत से पढ़ना शुरू And करेंगे. here Bible says, now the tax collectors and sinners were all drawing near to hear him. जब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आए करते थे ताकि उसकी सुने. And the Pharisees and scribes grumbled, saying, this man receives sinners and eats with them. और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता और उनके साथ खाता पीता The है. religious people were not happy with Jesus. जो धार्मिक अगुए थे वो उस समय परमेश्वर से खुश नहीं थे. यीशु से. Religion is never happy with Jesus. जब धर्म है वो यीशु से कभी खुश नहीं होगा. Because religion will say, oh, this person is that person is like that, we are better than them. क्योंकि धर्म कहेगा ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है और हम उन सबसे अच्छे हैं. Religion will say, first you do good works, then we will accept you. धर्म कहेगा पहले तुम अच्छे काम करो फिर हम तुम्हें अपनाएंगे. First you do good, then God will accept you. पहले तुम अच्छा करो फिर परमेश्वर तुम्हें अपनाएगा. But God is completely different. लेकिन खुदा बिल्कुल अलग है. Amen. आमीन. He's completely, he's not a religious God. जो परमेश्वर है वो धार्मिक रिलीजन पर बेस नहीं है. He's a God who has a heart full of love. वो ऐसा पिता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ God है. is our Father. जो पिता हमारा पिता है. Whenever Jesus called God his Father, जब भी यीशु ने खुदा को अपना पिता कहा, the Pharisees and Sadducees were not happy with him. तो जो फरीसी और सदूकी थे वो इससे खुश नहीं थे. They said, how can you call God your Father? और वो यीशु को कहते थे तुम खुदा को अपना पिता कैसे कह सकते हो? Because they said, if you're calling God your Father, that means you're saying you're also God. तो वो कहते थे कि अगर तुम खुदा को पिता कह रहे हो इसका मतलब तुम खुद खुदा हो. That means you're saying you are the Son of God. इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम खुदा के बेटे हो. That means you're saying that you're from heaven. इसका मतलब तुम ये कह रहे हो तुम स्वर्ग से हो. They were very upset about this. और वो इस बात से खुश नहीं थे. So, these tax collectors and sinners, the tax collectors and sinners, Jesus accepted them, he fellowshiped with them. तो ये जो चुंगी लेने वाले थे और पापी थे, यीशु ने इनको अपनाया और उनके साथ मिलते जुलते थे. He used to eat with them. उनके साथ खाते पीते He थे. will sit with them. उनके साथ बैठते थे. But the Pharisee mind setup was very different. लेकिन जो फरीसियों का माइंड था, जो सोच थी, वो बहुत अलग थी. Always looking down at other people. वो हर समय दूसरों को नीचा करके देखते This थे. person is like that. ये व्यक्ति ऐसा है. This woman is like that. ये औरत ऐसी है. This man is like that. ये आदमी ऐसा है. Always putting other people down. हर समय दूसरे व्यक्ति को नीचा करके देखते थे. Be very careful. I warn you, don't carry that mentality. मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि ऐसी मानसिकता मत लेकर That चलें. is a Pharisee mentality. क्योंकि ये जो मानसिकता है ये फरीसियों की That is मानसिकता है. not the mentality of God. ये मानसिकता परमेश्वर की ओर से नहीं है. Amen. आमीन. They were very upset. Pharisees were very upset. How can you sit with tax collectors and sinners? तो जो फरीसी थे वो बहुत ही इससे नाखुश थे कि तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ कैसे बैठ सकते हो. Jesus used to even go to their houses. और यीशु उनके घर भी जाते थे. He went to the chief tax collector's house.
तो वहां पर जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, यीशु उसके घर भी गए थे। And what happened? और वहां क्या हुआ? He repented from all his sins. और वो जो सरदार था उसने अपने सारे गुनाहों से मन फिरा Simply लिया, by seeing the acceptance of God. बस ये देख करके कैसे परमेश्वर उसको अपना रहे हैं। So in verse 3 it says, और तीसरी आयत में लिखा है, now Jesus wanted them to understand. अब यीशु चाहते थे उनको एक बात की समझ आए, So Jesus told them this parable. और यीशु ने इस दृष्टांत से उनसे बात So किया। parables during those days was not for everyone. और जो दृष्टांत थे वो सब व्यक्तियों के लिए नहीं थे उस In दिनों other में। words, through parables he was talking to his disciples. और दूसरी बात ये होती थी कि इन दृष्टांतों के द्वारा वो अपने चेलों से बात करते थे। He was revealing to some people, he was hiding from some people. कुछ लोगों को वो जाहिर कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों से वो छिपा रहे थे ये बातें। He said, what man of you having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it? तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता ना रहे। So here you say, whom among you, if you lose one sheep, will not go to searching for that sheep? और यीशु कहते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी एक भेड़ खो जाए और उसको ढूंढता हुआ ना जाए। Sheep is not animal which has no value. और जो भेड़ है वो कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसका कोई मोल नहीं है। It has a lot of value. It's not cheap. वो कोई एक मामूली सी चीज नहीं है, लेकिन एक वैल्यूएबल जानवर है। During those days, it was very expensive. और उन दिनों में वो बहुत ही बहुमूल्य थी भेड़। Amen. आमीन। Don't look down at yourself saying, Lord, I have no value, I am nothing. तो अपने आप को नीचा करके मत देखें कि प्रभु मेरा कोई मोल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। Maybe in your eyes you don't have any value for yourself. अपनी नजरों में हो सकता है आपकी कोई वैल्यू नहीं But हो, in the eyes of God, you are so precious. लेकिन परमेश्वर की नजरों में आप बहुमूल्य हो। That's why Jesus came, left heaven, came down searching for you. इसीलिए यीशु ने स्वर्ग को छोड़ा, धरती पर आए ताकि आपको खोज सके। So that the people who are away from God, they can come back to God. ताकि वो लोग जो परमेश्वर से दूर हैं वो परमेश्वर के निकट आ सके। Amen. आमीन। So he came to save the lost. इसलिए वो यीशु आए ताकि गुमे हुओं को बचा सके। Bible says we were lost. वचन में लिखा है हम गुमे हुए थे। We walked away from God. हम परमेश्वर से दूर थे। We were far away from God. हम परमेश्वर से बहुत दूर थे। But Jesus came looking for us. लेकिन यीशु आए हमें ढूंढते हुए। And the next verse Jesus said, अगली आयत में लिखा है, and he said, when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद के साथ उसे कंधे पर उठा लेता है। कंधे पर उठा लेता है। He lifts him up on the shoulder. Everyone say कंधे पे उठा लेता सब है। कहीं कंधे पे उठा लेता है। कंधे पे उठा लेता है। कंधे पे उठा लेता है। When he finds the lost sheep, जब उसको वो गुमी हुई भेड़ मिल जाती he है, will not go and tie that sheep with chain. वो जाकर उसको सलाखों में नहीं बांधता He उस will भेड़ not say, को। let me make you my slave. और ये नहीं कहता कि आओ मैं तुम्हें अपना गुलाम बना He will दूं। not give that sheep a good beating. वो उसको पिटाई नहीं करता उस भेड़ की। He will not say, oh yeah, I'm so angry with you, I'm upset with you, I'm going to beat you today. वो ये नहीं कहता कि मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ इस भेड़ से, मैं तुझे डांटूंगा और तुझे पीटूंगा। He will not tie that sheep's legs and bring that sheep that way. वो भेड़ की टांगे बांधकर उसको घसीटता हुआ नहीं लेकर He आता। will say, oh, I'm so happy I found you. लेकिन वो कहेगा मैं बहुत आनंदित हूँ, मुझे तुम मिल गए। He will put that sheep on his shoulders और उस भेड़ को अपने कंधों पर उठा लेगा and come rejoicing. और आनंद मनाता हुआ Can you give आएगा। the Lord a clap offering? प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं। That is who our God is. ये है हमारा पिता। He has not tied you with chain. उन्होंने हमें सलाखों से नहीं बांधा, He has lifted you up and put you on his shoulders. और उसने तुम्हें अपने कांधों पर उठाया है और तुम्हें ऊंचा किया है। Like during worship, Akash, his son was on his shoulders. जैसे हम देखते हैं आकाश, उसका बेटा उसके कांधे पर था। He is not tied a chain to him. उसने उसको सलाखों से नहीं बांधा, He's सांगलों से या संगली से या या संगली जंजीरों से जंजीरों नहीं बांधा। से नहीं बांधा। He put him on his shoulders. उसने कांधे पर उठाया था Same उसको। way when Jesus finds us, उसी तरह जब यीशु हमें खोजते he will हैं, not drag us. वो हमें घसीटते He हुए will नहीं not लेकर आएंगे, beat us. वो हमें मारेंगे He पीटेंगे will not नहीं, chain us. वो हमें जंजीरों से He नहीं will बांधेंगे, rejoice and put us on his shoulders. लेकिन वो आनंद मनाएंगे और हमें कांधे पर उठा लेंगे। Amen. आमीन। He'll say you don't have to walk. वो कहेंगे तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, I will walk on your मैं behalf. चलूंगा तुम्हारे हिस्से।
I will walk on your मैं behalf. चलूंगा तुम्हारे I हिस्से, will take you back. You don't have to walk anymore. मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा, तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है। Amen. आमीन। Christian life is a life where we depend on God. मसीह जीवन ऐसा जीवन है जब हम परमेश्वर पर निर्भर करते Where हैं, He put us on His shoulders and He said, "Not your strength, but my strength is available for you." और जब वो हमें अपने कांधे पे उठाता है और वो कहते हैं कि अब तुम्हारा बल नहीं लेकिन मेरा बल तुम्हारे लिए काफी होगा। Maybe the sheep was so tired हो सकता है भेड़ थकी हो because sheep was lost. क्योंकि वो गुमी हुई थी, Maybe was in a desert land, no grass to eat. हो सकता है रेगिस्तान में हो और कोई खाने के लिए ग्रास ना हो, Maybe sheep was so emotionally depressed. और हो सकता है वो इमोशनली बहुत Maybe नीचे थी sheep now lost weight. और अपना जो उसका वजन था वो भी कम हो गया था। But look at Jesus. He said, "Don't worry, you're weak. I am strong. I will carry you." और यीशु को देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं, तू अब कमजोर है, मैं तुझे उठाऊंगा। Amen. Give the Lord a clap प्रभु के लिए offering. जोरदार ताली बजाएं। Hallelujah. हालेलुया। Maybe you say you are weak, हो सकता है आप कह रहे हो कि आप कमजोर but I हैं, want to tell you, your God is strong. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका परमेश्वर बलवंत है। How many of you feel weak sometimes? कौन कौन है जो अपने आप को निर्बल महसूस करता है? But remember, your God is strong. लेकिन याद रखें आपका खुदा बलवंत है। When you cannot walk anymore, जब आप चल नहीं सकते और when you cannot handle pressure जब आप anymore, और दबाव नहीं सह सकते, He will carry you on His shoulders and He will take वो you. आपको अपने कंधों पे उठा लेगा और आपको लेकर He will चलेगा। say, "Son, do not worry. You are weak, but I am वो strong." कहेगा, बेटे डर मत, तू चाहे निर्बल है लेकिन मैं बलवंत हूँ। Hallelujah. Once again, give the Lord a clap प्रभु के लिए offering. जोरदार ताली बजाएं। Such a love. And Bible says He comes back rejoicing. और वचन में लिखा है वो आनंद बनाते हुए वापस आते How हैं God rejoices for us. कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत आनंदित होते Whenever हैं। you come to the house of God जब भी आप परमेश्वर के भवन में आते and हैं, you rejoice and God rejoices जब too. आप आनंदित होते हैं परमेश्वर भी आनंदित होते Because हैं, we come together as a family to worship Him, to hear His voice, to fellowship with Him. क्योंकि हम एक परिवार के तौर पर आते हैं ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, उसके वचनों से उसको सुन सके। When you have come to the house of God, जब आप परमेश्वर के भवन में आते you हैं, are not here for another religious service. आप किसी धार्मिक सेवा के लिए नहीं यहाँ पर आए, You are here to fellowship with Jesus Christ. आप यहाँ पर आए हैं ताकि आप यीशु मसीह के साथ सहभागिता कर You are सकें, here to fellowship with Holy Spirit. ताकि आप पवित्र आत्मा के साथ मेल मिलाप कर You सकें। are here to fellowship with your Heavenly Father. आप अपने स्वर्गीय पिता के साथ मेल मिलाप कर सके। Amen. आमीन। And then He rejoices. और वो आनंद मनाता है, And when He comes home, और जब वो घर आता है He calls together His friends वो अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करता and है His neighbors, और अपने पड़ोसियों को इकट्ठा saying करता to है them, "Rejoice with me, for I have found my sheep that was lost." और कहता है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। Amen. आमीन। He rejoices. वो आनंद मनाता है And not only He is rejoicing, और सिर्फ खुद ही नहीं वो आनंद He मनाता, calls the friends and neighbors and say, "Come rejoice together. My sheep was lost. Now I have found my sheep." वो अपने मित्रों को और पड़ोसियों को भी कहता है आओ मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ अब मिल चुकी है। How Lord rejoices for us. परमेश्वर हमारे लिए कितना आनंदित होते We हैं, have no idea how much He rejoices for us. हमारी सोच से भी परे है वो कितना आनंदित होते हैं, How much He rejoices for us. कितना आनंदित होते हैं हमारे Next लिए। verse says, अगली आयत में लिखा है, saying to them, "Rejoice with me, for I have found my sheep that was lost." मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से Verse 6, verse 7, "Just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance." मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। Amen. आमीन। When Lord rejoices, जब खुदा आनंद मनाते हैं, when does He rejoice? वो कब आनंद मनाते हैं? When a sinner repents, जब एक पापी मन फिराता है। maybe our heart is broken. हो सकता है हमारा मन टूटा हुआ Maybe हो we feel like, "Lord, I'm sorry I walked away from you. और हम कह रहे हैं प्रभु मुझे माफ करो मैं आपसे दूर हो गया हूँ, Lord, I sinned against you. मैंने आपके खिलाफ गुनाह किया I है, rebelled against you." मैंने आपके खिलाफ बलवा किया Maybe है। our heart is so हो broken. सकता है आपका हृदय टूटा हुआ हो, But on the other side, Lord is rejoicing. He said, "My son was lost. Now I have found my लेकिन हो son." सकता है दूसरी तरफ जो परमेश्वर है वो आनंद मनाते हैं कि मेरा बेटा खो गया था अब So मिल Lord गया is है। not looking for religious people.
जो तो खुदा किसी धार्मिक व्यक्ति की खोज में नहीं He है, is looking for people with a repentant heart. वो ऐसे व्यक्ति की खोज में है जो मन फिराव करे। How many of you make mistakes sometimes in your कौन life? कौन अपने जीवन में गलतियां करता है? Nearly every one of us sometimes miss something here and लगभग there. हम सब एक बार इधर उधर गलतियां करते हैं, But as long as you have a repentant heart, पर जब तक आपके अंदर मन फिराने वाला मन है, as long you are somebody, Lord, oh sorry, I missed it, I will make sure I don't do it again. और आप कहते हैं ओ परमेश्वर, हाँ मैंने यहाँ पर चूक गया लेकिन अब मैं दोबारा ये नहीं करूंगा, You know, as long as you are in that place, Lord is happy with you. और जब तक आप उस जगह पर हैं मन फिराने वाली पे, परमेश्वर आपसे खुश है। You know, like yesterday I was sharing, King Saul rebelled against God. जैसे मैं कल आपसे बात कर रहा था, जो साउल राजा था उसने रिबेल किया, बलवा किया खुदा के He खिलाफ। started doing things his own ways rather than God's ways. क्योंकि वो सब चीजें अपने तरीके से करना शुरू हो गया लेकिन परमेश्वर के तरीके से He नहीं, started building the kingdom of God his way rather than God's way. और वो परमेश्वर के राज्य को बनाना शुरू हो गया अपने तरीके से लेकिन खुदा के तरीके से You know, नहीं। he rebelled against God, उसने खुदा के खिलाफ बलवा किया and his mistake was that he was not supposed to do a sacrifice. और उसकी गलती ये थी कि उसने वो बलिदान नहीं चढ़ाना था, That was the duty of Samuel. और वो जो सैमुअल था उसकी जिम्मेवारी The थी, Lord was not happy with him. और परमेश्वर उससे खुश नहीं थे, Other time he was asked to destroy everything, और उसको कहा था कि सब कुछ नाश करके आना, but he saved some good animals. लेकिन उसने क्या किया, अच्छे जो जानवर थे वो बचा लिए। So when Lord saw these things, he was not happy. और जब खुदा ने ये सब चीजें देखी, खुदा इससे खुश नहीं You थे। know why God was not very happy with आपको him? पता है खुदा क्यों नहीं खुश थे? Because he had excuses for everything. क्योंकि उसके पास हर चीज के लिए एक एक्सक्यूज था, Oh, I did this because Samuel was late. और उसने कहा ओ मैंने ये इसलिए किया क्योंकि सैमुअल देरी से आया, I did this because people were leaving, so I thought better I make sacrifice. और मैंने देखा कि लोग जा रहे थे तो मैंने सोचा मैं ही ये बलिदान चढ़ा देता हूँ, You know, he wanted to please people rather than pleasing God. क्योंकि वो लोगों को खुश करना चाहता था, परमेश्वर को नहीं। So he had excuse for everything. तो हर एक बात का वो कोई ना कोई एक्सक्यूज दे And the देता Lord था, was not very happy with him. और परमेश्वर उससे खुश नहीं थे। But on the other side, you see King David. लेकिन हम दूसरी तरफ दाऊद राजा को देखते हैं, You know what he did? आप उसको ने पता क्या किया? He committed adultery. उसने व्यभिचार किया, He murdered his faithful man. उसने अपने एक विश्वास योग्य व्यक्ति की मृत्यु की। Such a good man. बहुत ही अच्छा व्यक्ति। You know, whenever I read, what King David did to him, I feel, whenever I read that chapter, my heart grieves. I said, David, how can you do that? जब भी मैं वो पढ़ता हूँ इसके बारे में तो मेरे मन में बहुत शोकित होता हूँ कि दाऊद तूने ऐसा क्यों किया उस भले He व्यक्ति के was साथ। so faithful, towards his king. वो बहुत ही विश्वास योग्य था दाऊद राजा के प्रति। He was so committed towards, his army friends. जो भी उसके सेना के दोस्त थे उन सबके प्रति वो विश्वास योग्य He था। said, how can I go back to my house when, there is a war going on? और वो कह रहा था मैं अपने घर वापस कैसे जा सकता हूँ अपने दोस्तों को छोड़कर जब एक He, युद्ध लगा हुआ he है। was even willing to die for David. और वो दाऊद राजा के लिए मरने को भी तैयार था। But look what David did to him. लेकिन आप देखो दाऊद ने उसके साथ क्या किया। This is called unfaithfulness. इसको कहते हैं जब हम विश्वास योग्य नहीं Many रहते। people are not faithful in their marriage lives. बहुत सारे लोग अपने वैवाहिक जीवन में विश्वास योग्य नहीं Many होते। people are not faithful with their spouses. वो अपने पति या पत्नी के साथ विश्वास योग्य नहीं होते। They sin, or some people commit adultery, or they get into pornography and all those things. वो गुनाह करते हैं, व्यभिचार में पड़ते हैं, गलत चीजें देखते हैं और इन सब में पड़ जाते हैं। This is unfaithfulness. ये क्या है? ये है जब हम विश्वास योग्य नहीं रहे। Imagine how much this breaks the heart of God. आप सोच के देखो परमेश्वर का दिल कितना दुखता होगा इससे। Imagine what David did to him. आप देखो दाऊद ने उस व्यक्ति के साथ He क्या was किया। so faithful towards वो David. बहुत विश्वास योग्य था दाऊद के प्रति। Sometimes some marriages we see one partner is faithful, other is unfaithful. और कहीं हम ऐसे विवाहित जीवन देखते हैं जब एक पार्टनर है वो बहुत सारा विश्वास योग्य है लेकिन दूसरा वो विश्वास योग्य नहीं है। One partner doing everything for the other partner, but the other partner doing his own things. एक जो पार्टनर है वो सब कुछ कर रहा है अपने पार्टनर के लिए लेकिन दूसरा पार्टनर जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा। How much imagine, that can break the heart of other person. आप सोचो कि वो दूसरे व्यक्ति का दिल कितना दुखेगा। And look what David murdered his faithful man. और दाऊद ने उसका खून कर दिया उस विश्वास योग्य That's व्यक्ति what का। sin will do. और ये है जो गुनाह करता है। That's what adultery will do. ये है जो व्यभिचार करती है। Bible says, can anyone put fire on their own chest and the chest will not be burned?
वचन में लिखा है कि वो अपनी छाती पर आग को रख ले तो क्या खुद वो ना जले, उससे ऐसे हो सकता है? Bible says the one who commit adultery is a fool. वचन में लिखा जो व्यभिचार करता है वो मूर्ख व्यक्ति है। That person is like a goat, going to chop off the head. वो एक बकरे की तरह है जिसका सर कटने को तैयार है। So look what David did, what adultery did to him. आप देखो व्यभिचार ने दाऊद के जीवन में क्या कर दिया। He was no longer able to think straight. अब वो सीधी तरह सोच ही नहीं पा रहा था। This destroys. I was sharing yesterday about how pornography destroys the people's brain. जैसे मैं कल आपसे बात कर रहा था, गंदी जो फिल्में हैं वो देखकर किसी व्यक्ति का माइंड कैसे गड़बड़ And they हो जाता start है taking all the wrong decisions in their life. और वो फिर सारे गलत फैसले लेना शुरू कर देते हैं अपने It's जीवन में। very important to keep it, protect it. बहुत जरूरी है हम अपने माइंड को प्रोटेक्ट करके रखें। Look what David now did. The man who really feared the Lord, because of adultery, his brain was destroyed. अब देखो जो दाऊद परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन व्यभिचार के कारण वो गलत फैसला किया और उसको मार दिया। Now he's thinking, oh, what will God know? अब वो सोच रहा है कि नहीं, परमेश्वर को क्या पता He's चलेगा। not thinking about God anymore. वो परमेश्वर के बारे में सोच ही नहीं रहा। He's not thinking about the heart of his heavenly Father anymore. वो अपने स्वर्गीय पिता के हृदय के बारे में सोच ही नहीं रहा। His sin blinded his eyes. गुनाह ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया। He was not able to look at his mistake वो अपनी गलतियों देख ही नहीं पा रहा था till prophet Nathan went to him. जब तक जो नथान भविष्यद्वक्ता था उसके पास आया God showed him mercy. और खुदा ने फिर उसको दया दिखाई। God could have left David like that, खुदा हो सकता है दाऊद को ऐसे ही छोड़ देते, but he said no. लेकिन उन्होंने कहा नहीं, I have to send my prophet. उन्होंने कहा मैं अपना भविष्यद्वक्ता भेजूंगा इसके लिए। Because now David's ears are closed because of his sin. क्योंकि दाऊद के कान अब बंद हो चुके हैं गुनाह के कारण। He said, I have to send my prophet. और खुदा ने कहा मैं अपना भविष्यद्वक्ता Let भेजूंगा my prophet go and speak to him and warn him. और मेरा भविष्यद्वक्ता जाएगा उसके पास, बात करेगा और उसको चेतावनी So देगा। prophet went to him. और अब वो भविष्यद्वक्ता जाता And he है told David, you have sinned against God. और उसने जाके कहा दाऊद तूने परमेश्वर के खिलाफ गुनाह किया है। David didn't came with all the excuses. अब दाऊद उसके बाद एक्सक्यूजेस के साथ He नहीं आया। didn't say, oh, you know what, one day I was just walking on my rooftop. वो ऐसे नहीं कहना शुरू हो गया और एक दिन मैं टहल रहा था अपने छत पर। That was not my mistake. That was that woman's mistake. वो मेरी गलती नहीं थी, लेकिन वो स्त्री की गलती थी। She should have covered her bathroom. उसको अपना जो बाथरूम था उसको कवर रखना चाहिए Why था। she appeared naked before me? वो मेरे सामने ऐसे नंगी क्यों आ गई? Oh, I was just using internet and some naked thing came and I thought let me check it. Some people say that. और मैं इंटरनेट चला रहा था और सामने कुछ ऐसा गलत नंगापन आ गया और मैंने कहा मैं देखता हूँ ये क्या है। That's what David did. और यही दाऊद ने भी किया। Something he was not preparing for it. He didn't plan it, but it just came in front of him. कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में उसने सोचा था या तैयारी की थी, बस उसके सामने आ गई। Rather than taking off his eyes from that thing, he kept looking at it. अब अपनी नजरें वहां से हटाने की बजाय वो उधर देखता रहा। As he kept on looking at और her, जैसे वो उसको देखता रहा adoring her beauty, और उसकी खूबसूरती को देखता रहा, sin was conceived in his heart. और जो गुनाह था उसने उसके अंदर जन्म ले लिया था। And then when sin was conceived, he did it. और जब वो गुनाह उसके अंदर जन्म लिया उसने वो कर दिया। After that, what happened? उसके बाद क्या हुआ? Death came. मृत्यु आई The child who was born died. और जो बच्चा उत्पन्न हुआ वो मर गया। That is the result of sin. ये है गुनाह का कॉन्सिक्वेंस। So, but thanks be to God, David opened his heart. लेकिन शुक्र है कि दाऊद ने अपने हृदय को खोला। He said, I have sinned against God. उसने कहा हाँ मैंने खुदा के खिलाफ गुनाह He किया said, है। Lord, do not take away your Holy Spirit away from me. उसने कहा परमेश्वर अपने आत्मा को मुझसे दूर मत करना। The thing about Holy Spirit is, पवित्र आत्मा के बारे में ये बात है, when Holy Spirit comes with the shaking. जब पवित्र आत्मा आता है तो वो एक व्यक्ति हिल जाता है। When Holy Spirit comes, people know something has happened inside me. जब पवित्र आत्मा आता है तो लोगों को लगता है हमारे साथ कुछ हुआ है। But when Holy Spirit goes away, no one realizes. और जब पवित्र आत्मा छोड़कर जाता है किसी को नहीं पता King चलता। Saul never was able to realize that God has left him. और दाऊद को भी नहीं ये एहसास हुआ कि परमेश्वर उसको छोड़ चुके हैं। He thought that God is still with me. उसको लगा परमेश्वर अभी भी मेरे साथ है। But now another spirit came over him. लेकिन अब एक और आत्मा उसके ऊपर आ गया था। And that spirit was bound now to destroy King Saul completely.
और अब जो वो दुष्ट आत्मा आया था, अब उसने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था Because सॉल rather राजा को। than repenting, King Saul was coming with all the excuses. क्योंकि अब मन फिराव करने की बजाय सॉल राजा क्या कर रहा था, बातें टाल रहा था, बना रहा था। But beauty about David is, लेकिन दाऊद की खूबसूरती क्या of थी? course, God was not happy with David. परमेश्वर दाऊद से खुश नहीं थे, He grieved the heart of God. उसने परमेश्वर के मन को शोकित किया था। But do you know something happened? लेकिन आपको पता है कुछ हुआ, He offered God a nice, beautiful basket full of cake. और उसने परमेश्वर के सामने एक केक की बास्केट रखी। No, he offered God $1 million. उसने आके परमेश्वर के सामने 1,00,000 रुपया रख दिया। Did he do that? क्या उसने ऐसा किया? You know, he offered God some nice gold and silver. क्या आके उसने परमेश्वर को कुछ सोना चांदी दिया? He offered God tithes and offerings. He said, Lord, here are my tithes and और offerings. आकर अपनी दशवांशियां और भेंटें उठाई और कहा, ये लो प्रभु मेरे लिए। No, he didn't do that. उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। God was not pleased because of that. खुदा उसके कारण उससे खुश नहीं होते। He was pleased because David repented that day. खुदा इसलिए खुश हुए क्योंकि दाऊद ने मन फिराव किया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं। Amen. आमीन। His repentance was very genuine. जो उसका मन फिराना था वो बिल्कुल जेन्युइन था, You know, मन से genuine था। repentance is not for 10 seconds. तो जो मन से हम जब मन फिराव करते हैं वो 10 सेकंड तक नहीं रुकती, It goes on for few days. वो कुछ दिन चलती रहती है। You know, it goes on repentance, praying, humbling before God. वो मन फिराना, प्रार्थना करना और अपने आप को नम्र करना परमेश्वर के आगे चलता रहता है कुछ दिन। We know we are forgiven, but still, you know, it's a process. हम पता है हम माफ किए गए हैं, लेकिन ये एक प्रोसेस है, It stays there for some days. वो कुछ दिनों तक चलता है। And God allows the genuine repentant to be like that. और परमेश्वर अलाउ करते हैं कि जब आप सच में मन से वो मन फिराव कर रहे हो, वो चलता रहे कुछ दिन। Yeah, we know we are forgiven. हम जानते हैं कि हम माफ किए गए But हैं, the grieving in the spirit stays there for some time. लेकिन जो हम आत्मा में शोकित हुए हैं, हमने जो गलत काम किया है, वो जो मन फिराना है वो चलता रहता है On कुछ one दिन। side we are forgiven, but on the other side we say, Lord, and that is for us to remember not to get back in that thing anymore. एक तरफ हमें याद है कि हम माफ किए गए हैं, लेकिन जब वो चलता रहता है तो हम मन में कहते हैं, हाँ प्रभु अब मैं दोबारा ये नहीं करूंगा। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So what God did, He rejoiced when David repented. और जब दाऊद ने मन फिराव किया, परमेश्वर ने आनंद मनाया His anger turned away from David. और परमेश्वर ने अपना मुख नहीं फेरा उससे। His anger turned away from David. उसका परमेश्वर का जो गुस्सा था वो दाऊद से हट गया। This is the power of true repentance. ये है एक अच्छे सच्चे मन फिराव की सामर्थ्य। Amen. आमीन। Even if someone is the greatest terrorist in this world, अगर कोई सबसे बड़ा आतंकवादी भी क्यों ना हो इस संसार maybe का, have killed millions of people, और उसने लाखों लोगों को मारा हो, but if he repents, लेकिन अगर वो मन फिराव कर ले, there will be rejoicing in heaven. उसके लिए आनंद मनाया जाएगा स्वर्ग That's में। the true power of repentance. ये है सामर्थ मन फिराव की। Amen. आमीन। You know, Jesus said in verse 7, so just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। Verse 8. 8वीं आयत। You know, here is another parable of lost coins. अब एक और दृष्टांत है खोए हुए सिक्कों का। You know, खोए हुए सिक्के का, lost coin. खोए हुए सिक्के जो लॉस्ट कॉइन्स है उनका एक और दृष्टांत है। Or what if woman having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and seek diligently until she finds it? ये कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। So the woman is looking diligently. और अब जो स्त्री है वो बड़े मन से खोज रही है उसको, Because the silver she lost is so precious. क्योंकि वो जो सिक्का उसने खोया है वो बहुत कीमती है। You know why sometimes when people don't show up in the church, we get back to them? आपको पता है कई बार जब लोग कलीसिया में नहीं आते और हम उसको उनसे बात करते हैं You know, where are you? Why are you not coming? कि आप क्यों नहीं आए, आप कहाँ हो? You know why? आपको पता है क्यों? Because you are so precious. क्योंकि आप बहुत कीमती हो। You are so precious. आप बहुत कीमती हो। You know, God has not called you to Himself for one day. खुदा ने आपको अपने लिए बुलाया है सिर्फ एक दिन के लिए He नहीं, has called you for eternity. उसने अनंत काल के लिए आपको Forever बुलाया and है, ever.
हमेशा के लिए बुलाया He है। loves you so much. वो आपसे इतना प्रेम करता So है। now when one is lost, तो जब एक खो गया though you know what woman does, she lights a candle तो वो क्या करती है, दिया जलाती है and then she looks for the coin. Where is my coin? और वो Where is- खोजती है मेरा सिक्का कहाँ गया। She's looking so diligently. वो बड़ा मन लगाकर ढूंढ रही What है। will you do if you lose something expensive? अगर आपका कुछ कीमती खो जाए आप क्या करोगे? What will you do if you lose your jhumka? अगर आपका ईयरिंग गुम जाए आप क्या करोगे? Even kaan ki bali. What will you do? कान की बाली गुम जाए आप क्या करोगे? You say, oh, leave it. It's okay. क्या आप ऐसे कहोगे? नहीं नहीं No, छोड़ो no, छोड़ो no, कोई you बात will look नहीं। under the bed. नहीं आप कहोगे मैं बिस्तरे के नीचे देखूं। Maybe 10 times you will look under the bed. 10 बार बिस्तरे के You नीचे will look देखूं, under the sofa. सोफे के नीचे You देखूं, will only even look into utensils. आप जाके बर्तनों में ढूंढोगे। If you have to open your wash basin, something, you will do even that. अगर वॉश बेसिन खोल कर भी ढूंढना पड़े आप वो भी करोगे। Because that thing is so expensive, so precious for you. क्योंकि वो बहुत कीमती और महंगी है। Same way this coin was so precious. उसी तरह ये सिक्का बहुत कीमती This था। was not ordinary ये coin. कोई साधारण सिक्का नहीं था। This was her silver coin. ये एक चांदी का She सिक्का था। didn't say, oh, it's okay, I have 9, even 1 is gone, it's okay. उसने ये नहीं कहा मेरे पास 9 है, एक गया, कोई बात नहीं। God will not say, oh, I have around, 2.5 billion children in this world, it's fine if one goes away. तो खुदा ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरे पास 2.5 बिलियन लोग हैं, अगर एक जाता भी है तो कोई बात नहीं। No, he is not that kind of father. नहीं, वो ऐसा पिता नहीं है। He knows how to handle billions of children at one time. और उसको पता है कि वो बिलियंस लोगों को एक समय में कैसे हैंडल कर सकता है। And billions and trillions of galaxies in this world, he is able to handle everything. अरबों और खरबों जो गैलेक्सीज हैं सब चीजों को परमेश्वर हैंडल कर सकते हैं। Nowadays in Western world, अब हम देखते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में some people don't want any child. कई लोग चाहते नहीं उनका कोई बच्चा हो। Some people say only one is okay. कई कहते हैं हाँ एक ही बहुत है। Because they say we can't handle more than one. क्योंकि वो कहते हैं हम एक से ज्यादा को संभाल नहीं Some will सकते। say okay, 2 is enough. कई कहेंगे हाँ 2 बड़े हैं। 2 is fine, we are fine with 2. हाँ 2 हैं, 2 बहुत We है। don't want any more. हमें और नहीं चाहिए बच्चे। But look at Heavenly Father. लेकिन स्वर्गीय पिता को He देखिए, cares for each and everyone. वो हर एक की परवाह करता He है। knows each and everyone. वो हर एक को जानता है। Another time I was doing a marriage seminar, मैं एक दिन एक मैरिज सेमिनार कर रहा and था, I was telling the difference between my mother and father. तो मैं वहाँ पर बता रहा था अंतर मेरे माता और पिता में। The mothers, the women, जो स्त्री है, they औरत can do है, multi things at one time. वो काफी सारी चीजें कर सकती है एक समय में। Phone on one side, एक कान पे फोन लगा होगा looking at a neighbor's dowry at another time, और पड़ोसी में क्या हो रहा है वो देख रहे hands होंगे washing utensils, और एक हाथ से बर्तन धो रहे होंगे thinking something else, और साथ में कुछ और भी मन में चल रहा होगा and ears towards the children, also one ear towards the children. और एक कान बच्चों की तरफ लगा हुआ है। They can handle so many things at the वो same बहुत time. सारी चीजों को हैंडल कर सकती है एक So समय one में। day what mother did, एक दिन मेरी माता ने क्या she किया? no, मेरे माता ने, I'm just giving ओके example. इन जनरल Yeah, एक what- दिन एक मदर ने क्या किया? Yeah, what one mother did, एक माता ने क्या she किया? left her 2 children at home with the father. वो अपने 2 बच्चों को छोड़ गई She अपने said, पिता I'll के be साथ। back in the evening, make sure you take good care of them. उसने कहा कि तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं शाम तक वापस So आऊंगी। father said, oh, don't worry, only 2 children, it's okay. उसने कहा हाँ कोई बात नहीं, 2 ही बच्चे हैं, मैं संभाल लूंगा। So now he was handling children. अब वो बच्चों को संभाल रहा था। Now he got so occupied with the one, he forgot there is a second one also. अब वो एक के साथ इतना बिजी हो गया कि वो भूल गया कि दूसरा बच्चा भी है। Second one went outside in the garden, was playing with the mud. और दूसरा बच्चा जो था वो गार्डन में जाके मिट्टी के साथ खेल रहा था। Then mother came back in the evening. अब माता जब वापस आई, She said, what have you done? उसने कहा ये तुमने क्या किया He है? said, look, see, I'm taking care of him. देखो मैं इसको संभाल रहा हूँ, उसने कहा। And mother said, what about the second one? उसने कहा दूसरा बच्चा कहाँ है? Oh, I forgot. उसने कहा ओ मैं तो भूल I गया, was so focused on this, I forgot there is another one. मैं इस पर इतना फोकस हुआ गया, मैं भूल गया दूसरा बच्चा कहाँ है। Maybe as earthly fathers we miss हो sometimes. सकता है धरती के पिता होने के नाते But हम our भूल जाएं, heavenly father is very different. लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता बहुत अलग है। He can handle billions of his children at one time. वो एक ही समय में बिलियंस ऑफ लोगों को संभाल सकता है। He can take care of billions of his children at one वो time. अपने बिलियंस जो उसके बच्चे हैं उनको संभाल सकता है एक ही समय में। He can provide for his billions of children at one time. वो सबके लिए मुहैया कर सकता है एक ही समय He में। deserves a better clap offering from him. बहुत जोर से ताली बजाएं। Hallelujah! Thank him. हालेलुया, Thank him. प्रभु का धन्यवाद करें। Yes, you can do more. Thank him. धन्यवाद करें प्रभु का। Thank you, Father. Hallelujah. हालेलुया।
You know, sometimes I've seen for some mothers, you know, it's hard to trust their husband with a very small baby. और कई मदर्स जो हैं वो अपने छोटे से बच्चे के साथ अपने जो उनका हस्बैंड है उसको भरोसा You know, नहीं when करती। Rufus was small, जब रूफस छोटा था he didn't like my, you know, my face, you know, because he was so soft, you know, he will feel some tingling or something. तो उसको मेरा चेहरा नहीं पसंद था क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट था तो उसको नहीं अच्छा लगता था। टच ही नहीं था, वो चुभ गई। अगर मैं उसको छूता था वो कहता था चुभ गई। But mother, he was very fine. लेकिन मदर के साथ वो कंफर्टेबल था। You know, but father was, you know, बड़ा चुभने वाला। और पिता इज लाइक चुभने वाला। And sometimes, you know, you're not holding him, you know, don't hold him like this, it's not safe. और कई बारी मतलब मुझे कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं पकड़ना इसका, ये सही नहीं है तरीका। नहीं ऐसे पकड़ो। इस लाइक होल्ड हिम दिस अरे वे। मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं है, क्या कर रहे हो? इसका सिर इधर आ रहा है, इधर नहीं आना चाहिए, इसको रखो। आई डोंट ट्रस्ट यू द वे यू आर हैंडलिंग हिम। You know, but you know, look at our heavenly Father. लेकिन You can trust him. He has carved you on his hands. लेकिन आप स्वर्गीय पिता पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि उसने आपको अपने हाथों पर खोदा हुआ है आपके चेहरे को। His hands are the safest hands in this universe. उसके हाथ सबसे सुरक्षित हाथ है इस संसार में। Hallelujah. Hallelujah. His hands are the safest hands. उसके हाथ सबसे सुरक्षित हाथ है। You know, he will not let you slip. वो आपको फिसलने नहीं देंगे। If you have given your life to him, you will not fall. अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है वो आपको गिरने नहीं देंगे। If you say, Lord, I surrender, आप कहते हैं प्रभु मैं आप पर निर्भर करता हूँ, my life is in your hands. मैं समर्पित करता हूँ, मेरा जीवन आपका है। Then it becomes his responsibility to help you to reach your destiny. और तो अब ये परमेश्वर की जिम्मेवारी बन जाती है कि आपको अपने गोल तक लेकर जाए। You are not in the hands of your boss. आप अपने बॉस के हाथों में नहीं हो। Neither are you in the hands of your pastor. ना ही आप अपने पास्टर के हाथों में हो। Neither you are in the hands of any apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. आप किसी भी भविष्यद्वक्ता, प्रेरित या टीचर जो है उसके हाथों में नहीं हो। You are in the hands of God Almighty. लेकिन आप परमेश्वर के हाथों में हो। Hallelujah. हालेलुया। His hands are the safest hands. उसके हाथ सबसे सुरक्षित हाथ Touch है। two people around you, tell them your life is in God's hands. अपने पड़ोसी को छूकर कहें, दो जनों को कहें कि आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। Do not be afraid. आप डरे मत, Your life is in His hands. आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में You know, है। today Karthik shared his testimony, आज कार्तिक ने अपनी गवाही शेयर and की we rejoice because of what God has done in और his हमने life. आनंद मनाया जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। But don't think that He will not do in your life. तो ये मत सोचे परमेश्वर आपके जीवन में नहीं कर Because I सकते, told you, He can handle billion of children at one time. क्योंकि मैंने आपको बताया वो अरबों खरबों बच्चों को एक समय में संभाल If सकता है। He can do it for Him, He will do it for you too. अगर वो उन कार्तिक के लिए कर सकता है वो आपके के लिए भी कर He सकता is है। not respecter of persons. He is not respecter of persons. हाँ, वो रिस्पेक्टर नहीं है किसी आप व्यक्ति के Oh लिए। no, I will do it for him. I will not going to do it for वो him. ऐसे नहीं करता कि हाँ मैं इसके लिए करूंगा, इसके लिए नहीं Oh, करूंगा। I don't like this person's face. I will not do it for him. मुझे इसका चेहरा पसंद नहीं, मैं इसके लिए नहीं I करूंगा। don't like this person's the way this person laughs. I will not do it for ये him. व्यक्ति कैसे हंसता है, मैं नहीं इसके लिए नहीं करूंगा। You know that thing we people do sometimes, but He will not do it. कई बार लोग ऐसा सोच सकते हैं लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते। Amen. Amen. He loves each and every child. वो हर एक बच्चे से प्रेम करता है। You know, even when child does poo, और जब एक जो बच्चा है वो पॉटी भी करता है still mother can hug and still kiss. तो फिर भी जो माता है वो क्या करेगी, वो आके उसको हग करेगी, उसको किस करेगी, Still carrying her उसको hands, उठाएगी। though the child is smelly. चाहे वहां से बदबू आ रही है लेकिन फिर भी उसको पकड़ेगी। You know, other person will say, oh, so smelly. और दूसरा व्यक्ति हो सकता है वो कहेगा है नहीं बड़ी बदबू आ रही But on baby, है। लेकिन जब अपना बच्चा हो, even poo is okay. अगर उसने पॉटी भी किया हो तो हम उसको संभालेंगे। Lord, it's fine. Thank you for this baby. Even poo is हाँ okay. प्रभु शुक्रिया आपका इस बच्चे के लिए, पॉटी भी होगी है हमारे साथ। You may be thinking, oh, I am stinking. हो सकता है आप सोचते हो कि ये बड़ी बदबू आ रही है, But Lord will take you when you repent. लेकिन जब आप मन फिराव करेंगे प्रभु आपको अपना लेंगे। He'll say, don't worry. वो कहेंगे मत चिंता I करो, will clean your poo. मैं आपकी हर गंदगी को साफ कर I दूंगा, will change your nappy. मैं आपके डायपर को बदल दूंगा, I will change everything. मैं सब कुछ बदल I दूंगा, will change your life. मैं आपका जीवन I बदल will दूंगा, change your walk. मैं आपका चाल I चलन will बदल change दूंगा, your talk. आपका बोलना बदल Just जाएगा। commit yourself fully into my hands. बस अपने आप को पूरी तरह मेरे हाथों में दे दो। Hallelujah. जोरदार ताली बजाएं। Hallelujah. हालेलुया। He takes full responsibility. वो पूरी जिम्मेवारी लेता है। Oh, I don't feel like finishing today.
मुझे मन नहीं कर रहा कि आज मैं खत्म करूं। You know, this woman, she found her coin. She searched for it diligently. वो बड़े मन लगाकर उसको खोजती है सिक्के को, And then what she does? और फिर वो क्या करती है? She calls together all her friends and neighbors saying, "Rejoice with me, for I have found the coin that I had lost." जब उसे मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसनों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। Just so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने आनंद होता है। How God rejoices for us. कैसे खुदा हमारे लिए आनंदित होते हैं Whenever we live our life with a repentant heart. जब भी हम एक मन फिराव वाले मन के साथ जीते हैं। Repentance is not one time thing. जो मन फिराना है वो एक बार की बात नहीं है, It's a matter of heart. ये हमारे मन हृदय की बात है, मन की बात When we है। realize, oh, I did mistake, Lord, I repent. जब आपको लगता है अरे मैंने गलती किया, आप उसी समय कहते हो प्रभु मैं मन फिराता No हूँ। excuses. कोई एक्सक्यूज Oh नहीं Lord, देते। Canada is so difficult, Lord. ऐसे नहीं, ओ परमेश्वर ये कनाडा तो बड़ा Oh, there मुश्किल is देश so है, much sin in my college. मेरे कॉलेज में बहुत सारा गुनाह है, In my office, so much sin. मेरे ऑफिस में बहुत गुनाह है, It's so difficult, Lord. मेरे लिए बहुत मुश्किल है That's परमेश्वर, why I fell. इसलिए मैं गिर गया। Look at Joseph. अब यूसुफ को देखें, In the Old Testament, पुराने नियम में no Holy Spirit inside him. उसके अंदर कोई पवित्र आत्मा नहीं था, Holy Spirit was with him, not inside him. पवित्र आत्मा उसके संग था लेकिन अंदर नहीं था, His heart was not changed yet. उसका मन अभी बदला हुआ नहीं But था, he so much feared the Lord. लेकिन फिर भी परमेश्वर का भय था। One time he was living among prisoners. और एक बार वो बहुत सारे कैदियों के साथ था। You know how these कैदीज are. आपको पता है ये कैदी कैसे होते हैं? Some sell drugs. कई ड्रग्स बेचते हैं, Some have done some rapes. कईयों ने बलात्कार किया Some है, are murderers. कई खूनी हैं, They will speak all the filthy language. और बिल्कुल घटिया बात उनकी होगी, Filthy language, गंदी abusive बातें words. बोलेंगी, गलत बातें बोलेंगे, गाली अपशब्द गलौज बोलेंगे, होगा, all these गाली things. गलौज करेंगे। But do you know, क्या आपको पता है, even though he was there in the prison for such a long time, चाहे वो इतने समय के लिए उस जेल में था, but nothing was able to affect him. लेकिन कुछ भी उस पर असर नहीं कर पाया। Hallelujah. हालेलुया। Doesn't matter where you go, nothing will be able to affect you. मायने नहीं करता आप कहाँ जाएंगे, कोई भी चीज आपको अफेक्ट नहीं कर Doesn't पाएगी। matter if you are living among the most sinful people, nothing will be able to affect you. मायने नहीं करता चाहे आप घोर पापियों के बीच में हो, कोई भी चीज आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। You want to know why? क्या आपको पता है क्यों? आप जानना चाहते हैं? Because the righteousness of God in you is more powerful than sin in this world. क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता जो आपके अंदर है वो ज्यादा सामर्थी है उस गुनाह से जो इस संसार में है। हालेलुया, आमीन। Sin shall have no dominion over you, Bible says. अब गुनाह का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। You know what dominion means? आपको पता है अधिकार या डोमिनियन का Last क्या week I मतलब was है? sharing, it came from the word domain. मैंने लास्ट वीक भी आपसे बात किया था, ये डोमेन वर्ड से आया है। It's like a territory. इसका मतलब है एक हिस्सा जमीन का। So what enemy does? तो एनिमी क्या करता है? He will like say, oh, this person is my territory. वो क्या करेगा, अच्छा ये जो व्यक्ति है ये मेरा है, ये मेरी टेरिटरी I है, will do whatever I want to do. मैं वो कुछ भी करूंगा जो मेरा मन I है, possess this person, this is what he'll मैं इसके say. ऊपर हूँ और ये मेरा है, मैं जो मर्जी करूँ इसके And साथ, he has to do what I say. और इसको वही करना होगा जो मैं कहूंगा इसको। But thanks be to God, लेकिन खुदा का धन्यवाद the chains are broken. कि हर जो जंजीर है वो टूट गई Devil है, is defeated. शैतान हार गया है। Sin cannot rule you anymore. अब गुनाह का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। If we ourselves want to put sin over our head, that's another story. लेकिन अगर हम खुद दरवाजा खोलें और कहें हाँ हम गुनाह करेंगे, वो अलग बात है। Rather than ruling over sin, we ourselves can say, okay, sin, you rule over me. It's और another story. इसके बजाय कि हम कहें हम गुनाह के ऊपर जयवंत हैं, हम ये कहें ठीक है गुनाह तू मेरे ऊपर अपना अधिकार दिखा, Decision is in your hands. उसका फैसला आपके हाथों में Touch your है। neighbor, tell them decision is in your hands. अपने पड़ोसी को छुएं और कहें फैसला आपका है, You have to decide. आपको फैसला करना है। Sin has no dominion over you. गुनाह का आपके ऊपर कोई अधिकार The नहीं power है। of sin is broken. गुनाह का हर पावर जो है Give the वो Lord a टूट clap चुका offering है if you यीशु believe के that. नाम से। जोरदार ताली बजाएं। Hallelujah.